Okay, good morning all. Date is visible. Date. Okay. So yesterday we have finished the theory of plane. All the theories which are not in syllabus or in syllabus, irrespective of syllabus, not in syllabus, keeping the in mind that it will be used in the competitive exams also for your mains exam. So I taught all the theories related to the plane. Now we'll start the exercise, NCERT exercise 11 point related to the plane. 11.1, 11.2 and miscellaneous. So 11.1 we have already solved, 11.2 also we have solved. Two exercise already done related to 3D and one was a straight line. Now this is exercise 11.3. Okay, this 11.3 is in each of the following cases, determine the direction, cosine and normal to the plane and the distance from the origin. देखो distance from the origin मतलब perpendicular distance हो जाएगी इसमें. Then you have to find DRF, determine the direction, cosine of the normal to the plane and the distance from the origin. डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट होती है. जब हम डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखेंगे ना तो राइट साइड में जो टर्म आएगी वो p हो जाएगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. सो क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 11.3. I am solving B part because it is more important than others are very simple questions, but still if you want I can solve. X plus y plus z equal to 1. Here a equal to 1, b equal to 1, c equal to 1. So DRS of normal are 1 1 1 DRS. But we need to find DCS. To find the DCS, divide by 1 square plus 1 square plus 1 square is root 3. We'll get here 1 by root 3x. Divide by this by 1. 1. Divide 1 by root 3. 1 by root 3x plus 1 by root 3y plus 1 by root 3z equal to 1 by root 3. On comparing Lx plus my plus lz equal to p, we have DCS are 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. These are the DCS. And p equal to length of perpendicular equal to 1 by root 3. Length of perpendicular is also 1 by root 3 and DCS are also 1 by root 3. And the length of the perpendicular or the distance of the plane and the plane and the distance of the origin. Distance from the origin or length of the perpendicular, or we can write distance of plane from 0 0 0. हमने जो थ्योरी पढ़ी है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, जो थ्योरी पढ़ी है वो किसी भी प्लेन के लिए होती है. ये जो पर्टिकुलर है वो सिर्फ लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन है, जब हम Lx my plus nz equal to p के फॉर्म में लिखते हैं. Find the vector equation of the plane which is at a distance of question number 2. Find the vector equation of the plane which is at a distance of 7 units from the origin. See, p equal to given, p equal to 7 given. And normal to the vector, n vector is given. N vector is given 3i plus 5j minus 6k. Therefore, mod n कितना हो जाएगा? Root of 3 square plus 5 square plus minus 6 का square means 9 plus 25 plus 36.
36 प्लस 0 60 रूट 60 आएगा रूट 60. Why we are why we are finding the modulus? मॉडुलस क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि हमें p गिवन है. p गिवन है तो हमको n के फाइंड करना पड़ेगा. इसलिए n के लिए हमको क्या चाहिए? वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस. वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करते हैं तो n के मिलता है. इसलिए हमने डी ए डॉट एन होता है ना, 1.12 से आता है. पी क्या होता है? लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. ऐसे बताया था ना, कॉर्नर पे प्लेन को बांधा है आपने पीछे, अगर उससे एक वायर से, तो वो लेंथ है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर. और डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, दिस इज डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम 0 0 0. ओके. इसलिए हमने इसमें n कैप फाइंड करने के लिए n वेक्टर का मॉड फाइंड किया है. तो ये हो जाएगा 3/√60 I 5/√60 j minus 6/√60 k. Okay. Therefore, required plane is r dot n k equal to p implies r dot n के मतलब ये लिखूंगा मैं 3i plus 5j minus 6k upon √60 equal to p की वैल्यू कितनी है? 7. दिस इज आंसर. Any doubt? Is there any doubt? Anyone, please, you can ask. Check the answer. Naman, you please check the answer of every question when because sometimes I made some silly mistake here. Silly mistake means question ही wrong note कर लिया या कहीं कुछ. Yes, क्या प्रॉब्लम है अनिमेश? आवाज नहीं आ रही है? क्लियर? वेट, आप बोल सकते थे, अभी इसलिए बोल रहा था मैं वो कॉलर माइक लगा लेता हूँ. यस नमन, आंसर चेक कर लिया करो आप. गुड. सेवेंटी आएगा. टोटल गलत किया है. 3 to 50 6 3 to 50 60 90 70 √70 आएगा. ओके नमन, करेक्ट आंसर कैसे हो गया? चेक नहीं किया था नमन ने? ऐसे बोल दिया करेक्ट है क्या? √70. देखो ना, एल्जेब्रिक मिस्टेक होगी ना, सिली मिस्टेक ही तो थी ये. √70 टोटली गलत लिख दिया. अच्छा, ओनली 7 चेक किया तो 7 तो राइट साइड में आएगा ना. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन. देखो आपको वेक्टर फॉर्म दे रखा है, उसको कार्टेशियन में रिड्यूस करना है. थ्योरी पढ़ाते समय मैंने वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म दोनों ही बताए थे आपको कि कैसे हम रिड्यूस करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट. नहीं, मैं सी पार्ट करता हूं तो बड़ा वाला सम करता हूं इसका. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स. आर डॉट s minus 2t I plus 3 minus t j plus 2s plus t k
equal to 15. Of course, this is in general form. This is in general form of plane r dot n vector. This is n vector equal to this is d. ये d है, देखो इसमें ये d है और ये n है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है. हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में, फॉर कार्टेशियन फॉर्म पुट r वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk. तो इसमें हम xi प्लस yj प्लस zk पुट कर देते हैं. डॉट s माइनस 2ti प्लस 3 माइनस tj प्लस 2s प्लस tk इक्वल टू 15. ओके, अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम इसके साथ. i डॉट i 1 होता है x इंटू s माइनस 2t, y इंटू 3 माइनस t एंड z इंटू 2s प्लस t इक्वल टू 0. दिस इज द आंसर. ये हमारे DRS है, इसके नॉर्मल के DRS इक्वल टू 15 नॉट 0. ठीक है, दीज आर द DRS. DRS ऑफ नॉर्मल क्या है इसमें? DRS ऑफ नॉर्मल s माइनस 2t, 3 माइनस t, 2s प्लस t. XYZ के कोफिशिएंट DRS का काम करते हैं. नॉर्मल के थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया था मैंने पहले दिन, जो पहला पॉइंट पढ़ाया था इसका. चेक करें आंसर. नमन, देखो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. और इसी पर बेस्ड वो इमेज वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है. अब बता देता हूं मैं आपको ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसी पर बेस्ड वो क्या पूछते हैं एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स के अंदर, इमेज, जो डायरेक्ट थ्योरी में नहीं दिया हुआ आपके एनसीईआरटी की बुक में. इमेज ऑफ ए पॉइंट ऐसे नहीं दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट. 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0. ऑफ कोर्स रेस्ट ऑफ द पार्ट फॉर यू. आप ट्राई करेंगे. सिमिलर क्वेश्चन है, मुझे लगता ही नहीं है कि आपको ये सिमिलर क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाए. सिर्फ नंबर चेंज कर दे तो हम नहीं कर पाए, ऐसा तो 12th क्लास के स्टूडेंट के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है ना. तो ABCD जो 3 पार्ट है वो प्रैक्टिस के लिए, ताकि फॉर्मूले आपको याद हो, जैसे मुझे याद है. मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, 100 साल हो गए पढ़ाते हुए, इसलिए मुझे याद है फॉर्मूले, है ना. 100 साल की डिफाइन मैंने आपको बता दी, मुझे 100 साल कैसे काउंट करता हूँ, क्योंकि एक साल में 4 बार कम से कम ये चीजें मैं पढ़ा देता हूँ. इसलिए मैं 25 साल हो गए तो 100 साल इसलिए काउंट करता हूँ. आपको तो 1 साल ही हुआ है, और 1 साल में भी 1 ही बार या 2 बार पढ़ा होगा बस आपने. तीसरी बार खुद को अच्छी तरह से पढ़ना है. इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. देखो ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है. मतलब आपको क्या फाइंड करना है? P फाइंड करना है. और ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16, 4 प्लस 9 प्लस 16 रूट 29. अगर हम ऐसा डिवाइड करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म में चला जाएगा? रिड्यूस इन विच फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म. दिस इज नॉर्मल फॉर्म. और ये कौन सा फॉर्म है? जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया, मतलब इसको इससे कंपेयर कर देंगे. Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P. पहले वाला ही क्वेश्चन है ये, फर्स्ट वाला ही. तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 अपॉन रूट 29. लेंथ ऑफ द बोला है ना इसमें. ओके सॉरी. इन द फॉलोइंग केस फाइंड द कोऑर्डिनेट. सॉरी, ये तो मैंने क्या फाइंड कर दिया? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. मैंने जो बोला था उसके बाद भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया ये तो, है ना. इसकी जरूरत नहीं थी. नॉट आस्किंग द क्वेश्चन, फिर भी मैंने फाइंड कर दिया. पर कैसे करते हैं, अगर किसी आगे क्वेश्चन में आएगा तो ऊपर पहले वाला क्वेश्चन में ये वर्क करना था. मुझे एक्चुअली यहाँ पे ये समझाना था कि ये फाइंड करना है एक्स वाई जेड. जो चीज मैंने अभी आपको बोली कि इमेज, और ये इसके आगे इमेज आ जाएगी ना, यहाँ ये वाली थ्योरी लगेगी इसमें. जो लास्ट थ्योरी पढ़ाई थी अभी आपको मैंने कल ही पढ़ाई थी ना, उस थ्योरी का यूज करेंगे हम एल के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए. प्लेन की इक्वेशन ये दे रखी है आपको. दिस इज प्लेन इक्वेशन 1. ओके,
तो हम क्या करेंगे, पहले इस एक्स वाई जेड को फाइंड करने के लिए इसके कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा 0 0 0 है इसमें, ठीक है, 0 0 0 अल्फा बीटा गामा है, एक्स वाई जेड ये है। इक्वेशन ऑफ पी एल लिखेंगे हम सबसे पहले, तो x माइनस 0 अपॉन इसके डीआरएस, इसके नॉर्मल के डीआरएस क्या है, नॉर्मल के डीआरएस क्या है, 2 3 4, नॉर्मल है ये, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये प्लेन वन है, दिस इज प्लेन वन, ये प्लेन की इक्वेशन है, ये प्लेन है, ये इसका नॉर्मल है, ये इसके डीआरएस है, ठीक है ना, ये प्लेन है, ये समझ में आ गया ना, ये प्लेन है, ये इसके डीआरएस है, और ये नॉर्मल है, आ गया होगा समझ में, यस। तो इक्वेशन ऑफ पीएल एक्स माइनस जीरो अपॉन 2, y माइनस 0 अपॉन 3, z माइनस 0 अपॉन 4 इक्वल टू t। तो x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू 3t, z इक्वल टू 4t, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम 2। कल की थ्योरी से कंपेयर करो, देखो इक्वेशन नंबर 2 यही दे रखी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू, पुट एक्स वाई जेड इन वन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 ये है, यहां पर देखो आप, ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर रहा हूं मैं, पुट इन 1, 2 इंटू 2t, 3 इंटू 3t, 4 इंटू 4t इक्वल टू 12, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 16, 13 प्लस 16 29, t इक्वल टू 12 by 29, is it correct? t equal to 12 upon 29, put in 2, x equal to आ जाएगा 24 by 29, y equal to 36 by 29 and z equal to 48 by 29. Just check the answer, क्या ये आंसर है? नमन, आंसर? हाँ, देखो इसमें मैंने एक्स्ट्रा इतनी चीजें जो फाइंड करी है ना, ये नॉट आस्क्ड, ये नहीं पूछा था क्वेश्चन में, फिर भी मैंने फाइंड कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, लेकिन वो पहला वाला क्वेश्चन जैसे ही पार्ट था, मैंने फ्लो में क्या कर दिया, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड कर दी, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन फाइंड कर दी, मुझे फाइंड क्या करना था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये। तो पहले मैंने क्या किया, पीएल की इक्वेशन लिखी, इक्वेशन ऑफ पीएल की जगह इक्वेशन ऑफ ओएल लिखते हैं या पीएल लिखते हैं, एक ही बात है ना, ओएल की इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर अपन ने ओ लिखा है इसे, ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ ओएल आ गई है। अब लेना स्क्रीनशॉट इसका, यहाँ पीएल लिखा हुआ था, फिर आप बाद में देखेंगे पी कहाँ है, वैसे देखते नहीं है स्टूडेंट स्क्रीनशॉट पर, कुछ स्टूडेंट रियली पढ़ते हैं ना तो वो देखते हैं, और अभी आपको ऑफलाइन में सब पता लग जाएगा, जब प्री बोर्ड होगी कितने स्टूडेंट ढंग से पढ़ाई कर रही है, नोट्स बनाए हैं, वो सब अब पता लगेगा। अब दिन अब हमारे आ रहे हैं, अभी तक आपके दिन थे, 100 दिन सुनार की, 1 दिन लोहार की। Next, question number 5. Find the vector and Cartesian equation of the planes. कार्टेशियन भी फाइंड करनी है और वेक्टर भी फाइंड करनी है, दोनों ही केसेस में फाइंड करना है। कंडीशन है द प्लेन पासेस थ्रू द ऑफ द प्लेन्स द पासेस दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 -2 एंड द नॉर्मल टू द प्लेन इज i + j - k, मतलब 1 पॉइंट फॉर्म लगेगा इसमें, 1 पॉइंट इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट केस ए, 1 point form of a plane, 1 point form of a plane यूज होगा इसमें। plane is passing through the point 1 0 - 2, 1 0 - 2, this implies
A vector equal to I plus 0j minus 2k. This is A vector. और वन पॉइंट फॉर्म ऑफ द प्लेन होता है r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0. ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको लिखा दिया है. देखो, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ ए प्लेन थ्योरी पढ़ाते समय बताया था, एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन, और इसी से हमने जनरल इक्वेशन बनाई थी प्लेन की. फर्स्ट पॉइंट है ये, पहली थ्योरी है. देखो आप, उसी में ये फॉर्मूला लिखा रखा है, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0. इसमें आपको नॉर्मल की जरूरत है, गिवन, ये भी गिवन है. Normal is also given, n vector equal to I plus j minus k. वो टाइटल्स निकालने में ना हाँ, पुट इन वन. ठीक है, पुट इन वन. वन में पुट कर दो r माइनस ए आई प्लस 0j माइनस 2k. ठीक है, डॉट एन आई प्लस j माइनस k इक्वल टू 0. इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो r डॉट आई प्लस j माइनस k माइनस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 1, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 2, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0. सो द आंसर इज r डॉट i प्लस j माइनस k इक्वल टू -3. दिस इज d एंड n वेक्टर इक्वल टू i प्लस j माइनस k. इसको कंपेयर किससे करेंगे, r डॉट एन इक्वल टू डी से. ये इसका कौन सा फॉर्म लिखा है मैंने, वेक्टर फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है इसका, वन पॉइंट फॉर्म. बोला है ना क्वेश्चन में, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन बोथ. वन पॉइंट फॉर्म. रिड्यूस नहीं करना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगा के करना है, ना कि इसको सॉल्व करके. वन पॉइंट फॉर्म, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0. वन पॉइंट फॉर्म ऑफ ए प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म. ए बी सी क्या है इसमें, डीआरएस है. किसके डीआरएस है, ए बी सी आर डीआरएस ऑफ नॉर्मल. एंड x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट. तो देखो पॉइंट आपको क्या गिवन है हियर, x1 1, y1 0, z1 -2. ये तो पॉइंट है. और साथ में क्या गिवन है, डीआरएस एबीसी. मतलब एबीसी कितने हैं, नॉर्मल के कोफिशिएंट्स 1 1 -1 फ्रॉम i प्लस j माइनस के. एन वेक्टर जो होता है ना, एन वेक्टर, उसमें जो आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, डीआरएस ऑफ द नॉर्मल. क्योंकि एन वेक्टर आई प्लस जे प्लस के फॉर्म में लिखा है, या ए आई प्लस बीजे प्लस सी के लिखा था हमने ना. आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, आई जे के कोफिशिएंट इन एन वेक्टर्स आर डीआरएस ऑफ द नॉर्मल. मतलब एबीसी का काम करते हैं वो. तो एबीसी मिल गया आपको 1 1 -1, और x1 y1 z1 इस फॉर्मूले में पुट कर दो. put into a की प्लेस पे 1, x माइनस 1, b की प्लेस पे भी 1, y माइनस 0, c की प्लेस पे -1, z माइनस z1 कितना है, 2 -2 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड. देखो आप डॉट प्रोडक्ट लेते तो यही आता है, x प्लस वाई माइनस जेड ही तो आता है, x x y i i j j k. और साथ में टर्म क्या आएगी, -1 -2 -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0.
यहाँ इक्वल टू में 3 लिखना है अपने को ना, क्योंकि अपने इसको राइट साइड में लिखा है ना, तो इक्वल टू 3 आएगा इधर, डी इक्वल टू 3। आ गया आंसर, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू डी के फॉर्म में। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। चेक द आंसर, ये दोनों आंसर चेक करें। ओके, क्या बोल रहे हैं नमन, बोल के बताओ। मैंने सर बुक में डॉट प्रोडक्ट करा नहीं, उनने डायरेक्ट लिख दिया बस ऊपर वाली लाइन ना, फर्स्ट वाली लाइन जो है बस वो, बाकी आंसर सही है। इसके ऊपर, उसके 2 स्टेप ऊपर, हाँ ये ऊपर, हाँ ये लिख दिया बस डायरेक्ट। अपने को तो नॉर्मल फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना उसको, सॉरी जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, सही ज्यादा सही कर रहा है यार इसको बिल्कुल, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में या फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म मतलब r डॉट एन इक्वल टू डी के फॉर्म में लिखेंगे या r डॉट एन कैप इक्वल टू p के फॉर्म में लिखेंगे, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने आपको बोला था 3 पॉइंट से जाने वाला प्लेन, बल्ले बल्ले, याद आया? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा। पहले आ चुका है एग्जाम में, और वो भी 6 मार्क्स में। आपने देखा होगा 12 पॉइंट्स की थ्योरी पढ़ाई है मैंने आपको प्लेन के अंदर, और ये 12 पॉइंट्स की जो थ्योरी पढ़ाई है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, स्टूडेंट थोड़ा लाइक नहीं करते हैं, जैसा ऑब्जर्वेशन है, पास्ट एक्सपीरियंस मुझे सजेस्ट करता है। और ऐसे में मैं ये बोलूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2-3 बार, तो आपकी किस्मत अगर अच्छी हो रही आ गया तो आपके लिए तो मजा आ जाएगा ना आपको, अरे चलो इतनी प्लेन के अंदर अच्छा क्वेश्चन आ गया 3 पॉइंट से जाने वाला। तो 3 पॉइंट से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन आया मतलब आपको तो मजा आ जाएगा। और वो भी नहीं कर पाए तो फिर तो वो खैर पता ही है, उन बच्चों के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, उनकी हालत शुरुआत से खराब होगी, वो नहीं पढ़ते हैं तो फिर उनका रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है। लेकिन अगर इरादे बुलंद हो तो सब कुछ किया जा सकता है, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, बहुत कुछ टाइम है, और आप चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं, ढंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन, और पॉइंट्स कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं, आपको वेक्टर फॉर्म में भी नहीं दिए मैं, तो ये तो और इजी हो गया। कार्टेशियन फॉर्म ज्यादा अच्छा लगता है स्टूडेंट्स को, वेक्टर फॉर्म कम अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा ऑब्जर्वेशन है, जैसा मैंने देखा है पास ईयर में, कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को वेक्टर फॉर्म अच्छा लगता है, जबकि लगना किसको चाहिए, एक साइंस के स्टूडेंट को। साइंस के स्टूडेंट पहले से भी पढ़ चुके हैं इसे। डन अनिमेश, आंख डन। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, द पॉइंट्स मस्ट नॉट बी कोलिनियर, बस ये ध्यान रखना है। तो 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन अगर डिटरमाइन कनेक्ट करते हैं हम 1 1 -1, बी के कोऑर्डिनेट 6 4 -5, सी के कोऑर्डिनेट -4 -2 3। 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और वो भी किसमें फाइंड करनी है, कार्टेशियन फॉर्म में, बिकॉज पॉइंट्स आर गिवन मींस कार्टेशियन फॉर्म। 3 पॉइंट्स, प्लेन में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट से आने वाले प्लेन की इक्वेशन, जो 12 पॉइंट की थ्योरी पढ़ाई उसमें दूसरे तीसरे नंबर पे मिल जाएगा आपको, और उसमें बोला भी था कि डिटरमिनेंट फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास। सो यूज दिस फॉर्मूला, रिक्वायर्ड प्लेन इज x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। ऐसे बोला था, एक पॉइंट को फिक्स करके उसको सभी में से माइनस करना है। अब सभी में से मतलब क्या सर, x y z में से भी, x2 y2 z2 में से भी, और x3 y3 z3 में से। खुद से तो माइनस करूंगा नहीं, तो 0 0 बन जाएगा डिटरमिनेंट की एक रो, और अगर वो 0 बन जाएगी तो आंसर ही 0 हो जाएगा। प्लेन की इक्वेशन में तो x y z का होना जरूरी है, इसलिए यहाँ x y z लिखे जाते हैं। और ये x1 y1 z1 जो पॉइंट लिया है मैंने फर्स्ट पॉइंट, उसको मैं सब में से माइनस कर रहा हूं, मतलब बचे हुए दोनों पॉइंट में से भी माइनस करूंगा, तो x2 y2 z2 और x3।
y3 z3 इक्वल टू 0। इसको फॉर्मूले को लिखेंगे आप वहां पर यूजिंग द फॉर्मूला रिक्वायर्ड प्लेन और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे x माइनस x1 इज 1, y माइनस y1 1, z माइनस z1 प्लस 1, x2 minus x1 6 minus 1, y2 minus y1 4 minus 1, z2 minus z1 minus 5 plus 1, x3 minus x1 minus 4 minus 1, y2 minus y1 minus 2 minus 1, z3 minus z1 3 plus 1। गलत वैल्यू लिखी सब कचरा हो जाएगा और बहुत दुख होगा आपको बाद में कि कहीं वैल्यू देखो कुछ मैंने तो गलत नहीं कर दिया अभी यहाँ ये रो में इसमें गलती होती है माइनस प्लस करने में। ये दिस माइनस दिस करना है ना, दिस माइनस दिस 2 पॉइंट्स x minus 1 y minus 1 z plus 1 6 minus 1 is 5 4 minus 1 is 3 minus 5 plus 1 is minus 4 minus 4 minus 1 minus 5 minus 2 minus 1 minus 3 3 plus 1 4 इक्वल टू 0। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार से 6 नंबर मिल रहे हैं फिर भी अगर आप एग्जाम में नहीं कर और आया हुआ है ऐसा भी नहीं है कि नहीं आया और इतना बोल रहा हूं मैं कि एग्जाम में आ सकता है फिर भी अगर आप नहीं तैयारी करके जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। x माइनस 1 12 प्लस 12 माइनस 12 हो जाएगा आप देखो इसके अंदर क्या हो रहा है 0 इक्वल टू 0 आ गया। 2 rows are identical, you can write direct here minus x minus 1 y minus 1 z plus 1 5 3 minus 4 5 3 minus 4 0 equal to 0 means points are collinear। infinite many planes passes। देखो क्या आंसर दिया नो यूनिक प्लेन। चेक आंसर व्हाट इज द आंसर नो यूनिक प्लेन। यूनिक प्लेन नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें एक्सवाइजेड ही नहीं आ रहे ना 5 3 माइनस 4 2 रोज आर आइडेंटिकल r1 एंड r2 एंड r3 आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब अगर एक जैसी होती है दो रो या कॉलम डिटरमिनेंट की तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो 0 इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाई जेड में तो आंसर आएगा ही नहीं इसमें एक्स वाई जेड से कोई मतलब ही नहीं रहा इसके अंदर एक्स वाई जेड ही खत्म हो गया। तो ऐसे नंबर ऑफ प्लेन्स बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका सेकंड पार्ट अब आप कर लेना बिल्कुल सिमिलर है मैं इसके अंदर टाइम नहीं खराब करना चाहूंगा बिल्कुल यहाँ पर नंबर आ जाएंगे कुछ और क्या डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता है तो बोल ही नहीं सकते हम। ऑल ऑफ यू नो हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। Leave meeting.